صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے دورہ یورپ کا آئرلینڈ سے آغاز۔ ڈبلن پہنچنے پر انہوں نے 92 نیوز سے خصوصی گفتگو کی۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت نے 15 اگست 2019 سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے علاقے کی جغرافیائی حیثیت تبدیل کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ ہر فورم پر مسئلہ کشمیر اور حریت رہنما یاسین ملک کے غیر منصفانہ سزا کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ نمائندہ 92 نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ جی، اس وقت ہم موجود ہیں آزاد کشمیر کے صدر بیرسٹر سلطان محمود کے ساتھ۔ یہاں ان کا جو دورہ ہے آئرلینڈ کا سرکاری دورہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہاں پر جو پاکستانی کمیونٹی ہے اور یہاں کے جو لوکل لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی اپنے جو ایڈریسز ہیں وہ کر رہے ہیں۔ صدر صاحب، ویلکم ٹو 92 نیوز۔ بتائیے گا آپ کے آئرلینڈ کے دورہ کے بارے میں۔ دیکھیں جی، میں نے یہ جو میرا ٹرپ ہے یہ میں نے ڈبلن سے شروع کر رہا ہوں، اور یہ بنیادی طور پہ جو مقبوضہ کشمیر میں مظالم ہو رہے ہیں اور 5 اگست 2019 سے جو مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت اس کو ختم کیا، بھارت وہ اقدامات اٹھا رہا ہے کہ وہ وہاں پہ وہاں ڈیموگرافی چینج کرے۔ اس نے فیک ڈیموسائلز دیے ہیں اور ڈیلیمیٹیشنز کی ہے، اور یاسین ملک صاحب کو وہاں پہ ایک لحاظ سے جوڈیشل مرڈر کرنے کی کوشش کی ہے، ان کو عمر قید سنا دی ہے۔ اور میں یہی سارا سلسلہ لے کے یہاں پہ آیا ہوں۔ یورپ میں برطانیہ بھی گیا ہوں اور دیگر ممالک میں بھی جاؤں گا۔ میں یہاں آئرش پارلیمنٹ میں بھی جا رہا ہوں، برٹش پارلیمنٹ میں جا رہا ہوں، میں وہاں پہ یورپین پارلیمنٹ میں جا رہا ہوں، اور میں ہر جگہ ہر فورم پہ جا کے اس مسئلے کو اٹھانا چاہتا ہوں اور میں دنیا کی توجہ مرکوز کرنا چاہتا ہوں۔ اور میں بالخصوص یاسین ملک صاحب کو 25 مئی کو عمر قید کی سزا ہوئی تھی اور 30 دن کے اندر اندر ان کو ہائر کورٹ میں اپیل کرنی ہے، تو میں نہ صرف پولیٹیکل لیول پہ، ڈپلومیٹک لیول پہ، مورل لیول پہ، بلکہ میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ قانونی چارہ جوئی کے لیے بھی یہاں کے جو برٹش بیرسٹرز ہیں، آئرش بیرسٹرز ہیں، ان سے بھی مل کے تو ہم ان کو وہ قانونی مدد بھی دے سکیں۔ میں آنے سے پہلے ان کی وائف مشال ملک صاحبہ سے بھی ملا تھا، جوائنٹ پریس کانفرنس بھی کی تھی، اس سلسلے میں بھی ہم اپنی کوششیں کر رہے ہیں۔ سر صاحب، یہاں کی جو آئرش کمیونٹی ہے یا پاکستانی کمیونٹی ہے، اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں آپ کا جو دورہ ہے یہ کس طرح کی کمیونٹی ہے، اور اس میں آپ کو کیا پازیٹیو وائبس نظر آئی ہیں آج کی ان میٹنگز کے بعد؟ دیکھیں جی، میں یہاں آتے ہی ایک ممبر پارلیمنٹ سے بھی ملا ہوں، اور یہاں پر جس طرح میں نے پاکستان اوورسیز کمیونٹی کے جذبات دیکھے ہیں، مجھے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ آئرلینڈ ویسے بھی کچھ کشمیر کی سملیرٹی آئرلینڈ ایشو سے ملتی جلتی ہیں، لیکن میں نے یہاں دیکھا ہے کہ لوگ بڑے باخبر ہیں اور وہ اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، وہ گائیڈ لائن چاہتے ہیں، وہ حکمت عملی بنانا چاہتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ابھی 2 دن ہوں یہاں پہ، اس سلسلے میں مختلف دوستوں سے بھی ملوں گا، پارلیمنٹیرین سے بھی ملوں گا، کونسلز میں بھی جاؤں گا، اور میں انسانی حقوق کی تنظیموں سے بھی مل رہا ہوں، اور میں سارا مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے اس کے لیے انشاءاللہ آواز اٹھانے کے لیے یہاں آیا۔ جی، بیرسٹر صاحب کا کہنا ہے کہ یہاں آئرلینڈ کا جو دورہ ہے اس میں خاص طور پہ یہاں کی یہ کمیونٹی، یہاں کی پارلیمنٹیرینز اور یہاں کے جو سوشل گروپس ہیں ان کے ساتھ سے ملیں گے، کشمیر کے بارے میں جو کنسنسس ہے اس کو کریٹ کریں گے۔ یاسین ملک کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اسے پوری دنیا کے سامنے، انٹرنیشنل لابی کے سامنے لے کر آئیں گے، اور ان کا یہ جو دورہ ہے یہ نیکسٹ اب یہ یورپ میں جائیں گے اور اس کو یہ کنٹینیو اس طرح سے کریں گے کہ کشمیر کا جو کاس ہے وہ میکسیمم لوگوں تک پہنچ سکے۔ جی، کشمیری حریت رہنما یاسین ملک کے خلاف بھارتی عدالت کے غیر منصفانہ فیصلے پر اوورسیز کشمیری سراپا احتجاج۔ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے رہنما راجہ ریاست خان نے 12 جون کو لندن مظاہرے کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں پارٹی کارکن سیاسی وابستگی سے بالا تر مظاہروں میں زیادہ سے زیادہ شرکت کریں۔ برمنگھم میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے آزاد کشمیر کی سیاست کے حوالے سے بھی اظہار خیال کیا۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں عابد کاظمی کی یہ رپورٹ۔
برمنگم کے مقامی ریسٹورنٹ میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے آزاد کشمیر مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق امیدوار آزاد کشمیر اسمبلی راجہ ریاست خان کا کہنا تھا کہ ممتاز حریت لیڈر یاسین ملک کی رہائی کے لیے دنیا کے گلی کوچوں تک پرامن احتجاج کریں گے۔ آزادی کے بیس کیمپ آزاد کشمیر اور دنیا کی جمہوری ہیڈ کوارٹرز برطانیہ سے اٹھنے والی آواز بالآخر اعلیٰ ایوانوں میں سنی جاتی ہے۔ وہ دن دور نہیں جب بھارت کو نہ صرف اسیر کشمیر کی عادت کو رہا کرنا ہوگا بلکہ کشمیریوں کا حق خود ارادیت بھی تسلیم کرنا ہوگا۔ ہمارا یہ حریت رہنما بھائی جو ساری زندگی کشمیر کی جنگ لڑا ہے مقبوضہ کشمیر میں، تو یہ جو یک طرفہ فیصلہ سنایا گیا ہے، میں اس میڈیا کے توسط سے یہ پورے جو ہے نا اپنی کمیونٹی سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی ہر چوراہے میں ہر جگہ ہر ذمہ دار جگہ جا کر اپنی آواز بلند کریں، اور یہ جو سزا ہے ہم اس کو نہیں مانتے ہیں، اور انشاءاللہ ایک دن وہ آئے گا کہ انشاءاللہ پوری قوم یاسین ملک کے ساتھ کھڑی ہے اور ہم سرخرو ہوں گے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ امید کی جاتی ہے کہ پاکستان میں قائم پی ڈی ایم کی حکومت بہت جلد معاشی بحرانوں پر قابو پا لے گی۔ حالات و واقعات سے لگتا ہے کہ پاکستان میں آئندہ عام انتخابات اپنی مدت کے اختتام پر ہی ہوں گے۔ آزاد کشمیر میں پارٹی قیادت کی تبدیلی میں مرکزی قیادت جس پر اعتماد کرے گی۔ جو گورنمنٹ تھی وہاں پہ پہلے پونے 4 سال اس گورنمنٹ کی جو کارگزاری ہے وہ سب کے سامنے ہے، اور وہاں پہ پی ڈی ایم نے مل کر جو گورنمنٹ جو وہاں بنائی ہے، اور یہ وہ لوگ آئے ہیں کہ میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ تجربے کار لوگ، اور ان کے سارے سائن موجود ہیں پورے پاکستان میں، بالخصوص ہمارے قائد میاں نواز شریف صاحب نے جو کام وہاں پہ ہر شعبہ زندگی میں جو انہوں نے کام کیے وہ اپنی مثال ہے۔ اس موقع پر مسلم لیگ یوتھ ونگ مڈ لینڈ کے صدر محفوظ مفل راجہ مظہر خان، اجاز مغل اور دیگر نے کہا کہ جسٹس فار جموں کشمیر فورم کا مورخہ 22 جون کو لندن میں حریت قائدین کی رہائی کے لیے اعلان کردہ احتجاج پر ہم بھرپور شرکت کریں گے۔ یہ میاں نواز شریف صاحب کا ہی موقف ہے کہ ان کے ایک شعر ادھر بیٹھ کر یاسین ملک صاحب کے لیے جو ایک کالا فیصلہ کیا گیا ہے اس کی جو ہے وہ پرزور مذمت بھی کر رہے ہیں، اور جب سے رائے ریاست صاحب برطانیہ آئے یہ کریا جا رہے ہیں، اپنے حلقہ انتخاب کے دوست احباب سے ان سے ملاقات کر رہے ہیں، اور بے شمار پروگرام میں خود موجود تھا کشمیر کے حوالے سے جو یہ پالیسی دے رہے ہیں، یہ میاں نواز شریف صاحب کی ہی پالیسی ہے۔ بھارتی عدالت کے فیصلے کے خلاف 12 جون کو لندن میں ہونے والے احتجاج میں تمام کشمیری جماعتوں نے ایک جھنڈے تلے جمع ہو کر بھرپور احتجاج کا پروگرام ترتیب دیا ہے جو وقت کی اہم ضرورت ہے۔ برٹش کشمیری نوجوان اس احتجاج کی بھرپور تائید کرتے ہیں۔ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگم۔ اور بریڈ فورڈ میں بھی یاسین ملک کے خلاف بھارتی عدالت کے فیصلے پر کشمیریوں نے آواز بلند کر دی۔ کشمیری کمیونٹی رہنماؤں کی جانب سے استقبالیہ کا اہتمام کیا گیا جس میں میاں محمد بخش سوسائٹی کے چیئرمین بابو چودھری، محمد صدیق اور سابق چیئرمین زکوٰۃ کمیٹی اختر حسین شیخ نے خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر شرکاء نے بھارتی عدالت کے فیصلے کی سخت مذمت کی اور کمیونٹی کی جدوجہد کی تائید کی۔ دیکھتے ہیں وقار بابر مغل کی یہ رپورٹ۔ بریڈ فورڈ میں چیئرمین میاں محمد بخش سوسائٹی بابو چودھری، محمد صدیق اور اختر حسین شیخ سابق چیئرمین زکوٰۃ کمیٹی کے اعزاز میں استقبالیہ دیا گیا۔ استقبالیہ میں سابق مشیر آزاد کشمیر حکومت راجہ شوکت خالق، چیئرمین تحریک حق خود ارادیہ راجہ نجابت حسین، راجہ غضنفر خالق، سابق لارڈ میئر آف بریڈ فورڈ اور سابق مشیر وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عبد الرحمان خان نے خصوصی شرکت کی۔ استقبالیہ سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین میاں محمد بخش سوسائٹی بابو چودھری، محمد صدیق، اختر حسین شیخ، چیئرمین تحفظ ناموس رسالت الحاج ملک رحمت عوان چودھری، محمد بشیر سیکٹری اطلاعات پی پی بریڈ فورڈ اور میزبان شیخ سعید نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کی سخت مذمت کی۔ ان کا کہنا تھا بھارتی عدالت نے جھوٹے اور بے بنیاد مقدمے میں حریت رہنما یاسین ملک کو سزا دے کر انصاف کا قتل عام کر دیا ہے۔ دنیا بھر میں بسنے والے اور اوورسیز کشمیری بھارتی عدالت کے اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں۔ 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے معزز مہمانوں اور تقریب کے دیگر شرکاء نے کچھ یوں اظہار خیال کیا۔ جن لوگوں کا کشمیر کے بارے میں بہت بڑا ایک کام ہے، ان سے ملاقات ہوئی اور یہاں پہ جو ہے ناشتے کا بندوبست تھا، تو مجھے یہ ان سے جو ہے گفتگو کا بھی مطلب ہے کہ یہ
ٹائم ملا ہے ان سے کشمیر کے بارے میں، یاسین ملک کے بارے میں یہاں پہ جو ہے لوگوں کے بڑے زبردست جو ہے نا یہ تاثرات ہیں کہ انہوں نے انڈیا نے ناجائز جو ہے نا وہ سزا دی ہے۔ برطانیہ میں بسنے والے کشمیری اور پاکستانی اپنے وطن کے ساتھ ساتھ ریاست جموں و کشمیر کی آزادی کی اس تحریک میں، اور خصوصاً جو یاسین ملک کو بھارتی حکومت کی طرف سے تاحیات سزا دی گئی ہے، سزائے قید، اس پہ احتجاج کرنے کے حوالے سے کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں اس پہ بریف بھی کیا گیا۔ پاکستانی کمیونٹی کے شکر گزار ہیں جو ہمارے لیے آج مسئلہ کشمیر کے لیے جناب یاسین ملک صاحب کی رہائی کے لیے جو کوششیں کر رہے ہیں۔ ہمیں پوری امید ہے کہ انشاءاللہ بہت جلدی ان کی یہ محنت رنگ لائے گی۔ اس کے علاوہ تحریک آزادی کشمیر کے لیے جو کچھ کام ہو رہا ہے، سارے ساتھی ہمارے یہاں کے مل کے پورے بریٹن کے ایم پی اپنا کونسلرز، سیولین لوگ جو یہاں محنت کرتے ہیں، ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ ہمیں بہت عزت دیتے ہیں۔ ہمارے معزز مہمان جو میرپور سے تشریف لائے ہیں، ہم ان کو بیڈفورڈ میں خوش آمدید کہتے ہیں اور اپنے میزبان محترم سعید صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے بریڈفورڈ کی قریب جو ہے ان لوگوں کو یہاں پر اکٹھا کیا تاکہ ہم اپنے جو مہمان ہیں ان کو خوش آمدید کہہ سکیں۔ بڑی دوستوں نے عزت افزائی دی اور مل بیٹھے ہم، اور مختلف امور پر، کشمیر کے امور پر اور پاکستان کے مختلف امور پر ہم نے تبادلہ خیال بھی کیا۔ تو میں ویلکم کرتا ہوں تمام دوستوں کو۔ تقریب کے شرکا نے برطانیہ میں بسنے والے کشمیریوں کی جانب سے مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کی کوششوں کو سراہا۔ ان کا کہنا تھا کشمیری کمیونٹی بھرپور طریقے سے حریت رہنما یاسین ملک کی سزا کے خلاف آواز بلند کر رہی ہے، جو کہ انتہائی قابل تحسین ہے۔ وقار بابر مغل، 92 نیوز، بریڈفورڈ۔ اور معروف صحافی، دانشور و کالم نگار عطاء الحق قاسمی نے لندن کے علاقے ہونسلوں میں بے گھر اور ضرورت مند افراد کے لیے مصروف عمل اوپن کچن کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے بے گھر اور ضرورت مند افراد میں اپنے ہاتھوں سے کھانا اور دیگر اشیاء ضروریہ بھی تقسیم کی۔ فلاحی تنظیم مسلم ہینڈز کے چیئرمین سید لخت حسین اور دیگر شخصیات نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف ویو کے غلام حسین آوان کی اس رپورٹ میں۔ معروف صحافی، دانشور و کالم نگار عطاء الحق قاسمی کی لندن کے علاقے ہونسلو آمد۔ بے گھر اور ضرورت مند افراد کے لیے مسلم ہینڈز کے اوپن کچن پروجیکٹ کا دورہ کیا۔ اوپن کچن آمد پر انہیں مسلم ہینڈز کے چیئرمین سید لخت حسین اور دیگر نے خوش آمدید کہا اور پھول پیش کیے۔ اس موقع پر ضرورت مند افراد میں کھانے اور اشیاء ضروریہ کی تقسیم کا عمل جاری تھا۔ عطاء الحق قاسمی نے بھی کار خیر میں حصہ لیا اور مسلم ہینڈز کے چیئرمین سید لخت حسین کے ساتھ مل کر ضرورت مند افراد میں کھانا اور دیگر اشیاء تقسیم کی۔ تقریب میں مسلم ہینڈز کے چیئرمین سید لخت حسین، افتخار کیسر، ثقلین امام، طاہر چودھری، لارڈ پاشا، مشتاق لاشاری، عمر بھٹی، سوج بٹ، وقار احمد اور دیگر افراد نے شرکت کی۔ اس موقع پر اوپن کچن کے انچارج احسان شاہد نے معزز مہمانوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ جس طرح کسی انسان کی زندگی میں کھانے کا کوئی ناغہ نہیں ہو سکتا، اسی طرح یہ اوپن کچن بھی پچھلے 4 برسوں سے بغیر کسی ناغے کے ضرورت مند افراد میں 2 وقت کا کھانا تقسیم کر رہا ہے۔ احسان شاہد کا کہنا تھا کہ اس نیک کام کو مسلم ہینڈز نے شروع کیا اور پورے برطانیہ میں اس سلسلے کو بڑھانے کے لیے منصوبے پر کام جاری ہے۔ امید ہے کہ ملک بھر میں 40 سے زائد اوپن کچن کھولے جائیں گے۔ اس موقع پر مسلم ہینڈز کے چیئرمین سید لخت حسین نے بتایا عنقریب برطانیہ سمیت دیگر ممالک میں بھی اوپن کچن کو پھیلانے کا پروگرام ہے تاکہ ضرورت مند افراد کی بلا تخصیص مدد کی جا سکے۔ جناب عطاء الحق قاسمی صاحب کے شکر گزار ہیں کہ اوپن کچن میں یہاں پر تشریف لائے ہیں، مسلم ہینڈ کو عزت بخشی ہے اور انشاءاللہ ان کا یہ پیغام جو ہے ان تمام لوگوں تک پہنچے گا جن کو اللہ نے استطاعت دی ہے اور غریب اور یتیم، مسکین اور بیوگان کے سروں پر ہاتھ رکھنے کے لیے اس قسم کے لنگر نہ صرف پاکستان پوری دنیا میں کھولیں گے۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے عطاء الحق قاسمی اور دیگر شرکا نے کہا کہ لندن جیسے شہر میں نادار اور ضرورت مند افراد کی بلا تفریق ایک مسلم فلاحی ادارے کی جانب سے مدد دیکھ کر انہیں بے حد خوشی ہوئی ہے۔ امید ہے اس کار خیر میں مزید اضافہ ہوگا اور یہ منصوبہ دیگر ممالک اور شہروں میں بھی شروع کیا جائے گا۔ آج اپنی آنکھوں سے دیکھا اور یقین کریں کہ میری آنکھیں چھلکنے والی تھی جب میں نے دیکھا کہ انتہائی غریب لوگ جو ہیں اعلیٰ درجے کا کھانا، یعنی یقین کریں پاکستان میں جو متوسط کلاس ہے نا شاید وہ یہ کھانا کھاتی ہو، جو یہاں ان کو بڑی عزت اور احترام کے ساتھ دیا جا رہا ہے۔ اور لخت حسنین صاحب کو میں بہت عرصے سے جانتا ہوں، 30-35 ملکوں میں ان کا یہی کام ہے، اور پھر یہاں جو اس کام سے آپ لوگ جو میسیج دے رہے ہیں یہاں کے، وہ جو ہمیں سمجھا جاتا ہے دہشت گرد یہ وہ، تو حالانکہ دہشت گرد تو ہم نہیں ہیں، وہ چند ایک لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی پالے ہوئے کسی اور کے ہوتے ہیں۔ ہمارا تو اصل منصب یہی ہے، ہمارا تو مذہب بھی یہی ہے، خدمت انسانیت۔ اور میں احسان شاہد کو بھی مبارک دیتا ہوں کہ اپنے کاروبار کے علاوہ وہ یہ
खिदमत भी जो है वो खिदमत खल्क भी कर रहे हैं। दुनिया में अपनी नौइयत का वाहिद प्रोजेक्ट है ओपन किचन वाला, बनी नौ इंसान की खिदमत के लिए, भूखों को खाना खिलाने के लिए। और अभी हमने देखा है बाहर कि तमाम मुस्तहिक लोग थे जो कि अपना खाना मतलब ले रहे थे और बाइज्जत तरीके से और बड़ी प्रेस्टीज के साथ कि उनकी इज्जत नफ्स भी मजरू ना हो और वो अपना खाना अपने साथ लेकर भी जाएं। समझता हूँ कि यूके के अंदर जो मुसलमान आके बसे हैं वो किसी रंग और नस्ल के हैं, यहाँ मुसलमानों की जो शनाख्त है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है और वो है अच्छे इखलाक और दूसरों के साथ हमदर्दी और खैरख्वाही, जो नबूवत का एक बुनियादी काम है। मैं समझता हूँ इस तरह का जो भी वेलफेयर का काम है, लख्त हुसैन साहब की मुस्लिम हैंड्स ने, एहसान शाहिद साहब ने ये मिलकर जो काम किया है, मैं इसको बहुत दिल की गहराइयों से समझता हूँ कि ये मुसलमानों का आने वाली नस्लों का आज भी और आने वाली नस्लों का एक ट्रेडमार्क होगा, उनकी शनाख्त बनेगा। तकरीब में अताल हक कासमी ने शुरका को अपनी किताब का तारुफ भी पेश किया जो नामवर शख्सियात को लिखे गए खतूत पर मुश्तमिल थी। आखिर में मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की पुरतकल्लुफ़ तवाज़ो की गई। गुलाम हुसैन अमान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़ UK। मैनचेस्टर के मकामी हॉल में पाकिस्तान और लंदन से रियल एस्टेट से वाबस्ता मुख्तलिफ कंपनीज के डायरेक्टर्स, सेल्स एजेंट्स और इन्वेस्टर्स की खुसूसी तकरीब हुई, जिसमें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम और पाकिस्तानी टीम के स्पिन बॉलिंग कोच मुश्ताक अहमद ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। तकरीब के शुरका को पाकिस्तान में जारी रियल एस्टेट के बेहतरीन मनसूबों के हवाले से आगाह किया गया। तकरीब का मज़ीद अहवाल जानते हैं राजा वाजिद की इस रिपोर्ट में। मैनचेस्टर के मकामी हॉल में द क्रिएटिव इवेंट्स के डायरेक्टर्स आसिम यूसुफ और समरीन चौधरी की तरफ से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तान और लंदन से रियल एस्टेट से वाबस्ता कंपनीज के डायरेक्टर्स, सेल एजेंट्स, इन्वेस्टर्स ने भरपूर शिरकत की। तकरीब की खास बात पाकिस्तानी क्रिकेट हीरोज की शिरकत थी। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम और मौजूदा स्पिन बॉलिंग कोच मुश्ताक अहमद ने तकरीब में खास तौर पर शिरकत की। इस मौके पर द क्रिएटिव टीम के डायरेक्टर आसिम यूसुफ, समरीन, फरीद बाजवा, चौधरी अब्दुल रऊफ, मोहम्मद शाहिद, फवाद, जमील अहमद और दीगर ने कौमी क्रिकेट टीम के साबिक सुपरस्टार्स वसीम अकरम और मुश्ताक अहमद का वालिहाना इस्तकबाल किया। तकरीब से खिताब करते हुए वसीम अकरम और मुश्ताक अहमद ने कौमी क्रिकेट टीम को मुल्तान में वेस्ट इंडीज के खिलाफ कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की और पाकिस्तान में रियल एस्टेट में सरमायाकारी के लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों को दावत दी। मीडिया से बातचीत करते हुए तकरीब के ऑर्गेनाइजर, पाकिस्तान और लंदन से आए रियल एस्टेट से वाबस्ता कंपनीज के डायरेक्टर्स ने भी ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी को पाकिस्तान में हाउसिंग सोसाइटीज, रियल एस्टेट के दीगर मनसूबों में सरमायाकारी के मौक़ों के हवाले से आगाह किया और ओवरसीज पाकिस्तानियों को रियल एस्टेट मनसूबों में ज्यादा से ज्यादा सरमायाकारी करने की तरगीब दिलाई। लोग यहाँ जनरली स्केर्ड इसलिए थे, होते रहे ओवर द इयर्स के वहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था। ये अपने रिश्तेदारों को या कजन्स को या जानने वालों को पैसे भिजवाते थे, पता लगता था वो प्रॉपर्टी खरीदी नहीं गई। सो विद दिस द ओपनिंग ऑफ ऑफिस इन लंदन, ताकि जो सारे यूरोप में स्पेशली इंग्लैंड वाले जाना नहीं पड़ेगा वहाँ, सारा इनका जो ट्रांजैक्शन है, प्लॉट के पेपर्स हैं, सारे इनको लंदन के ऑफिस में मिल जाएंगे। जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए डील लेके आए हैं उसमें हम सारे खिलाड़ियों ने भी इन्वेस्टमेंट किया है ताकि लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्ट अप हो जाए, ताकि लोग अपना इन्वेस्टमेंट कर सकें, जहाँ पे उनको सुकून से पता हो कि हमारा घर है, हम जा सकते हैं पाकिस्तान, जाके हॉलीडेज पे रह सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि रियल एस्टेट के अंदर पाकिस्तानियों ने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की है, उसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए आज हमने यहाँ पे इवेंट किया है। इसका मकसद है कि पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट है, जो ओवरसीज़ पाकिस्तान ने ऑलरेडी कितनी सारी इन्वेस्टमेंट की है, उसको बढ़ाया जाए। स्पेशली जो हमारे लेजेंड थे वसीम अकरम और मुश्ताक भाई, उन्होंने भी जिस तरीके से अपने ओवरसीज़ भाइयों को इस ग्रुप के बारे में एतमाद में लिया है, ये एक बहुत बड़ी बात है। I encourage any investment to Pakistan. I applaud it, inshallah. And hopefully if you make any investment in Pakistan, it will be worthwhile for your future generation. एक सवाल जो हमारे ओवरसीज इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा पूछते हैं, क्या पार्कियों में इन्वेस्टमेंट आपकी सेफ है? यस इट इज़ सेफ। क्या सिक्योर है? यस। आर यू गोना गेट गुड रिटर्न्स ऑन इट? यस, यू आर गोना गेट वेरी गुड रिटर्न्स ऑन इट। बेसिकली हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनको हम ये अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर सके। तो आज ये हमारा रोड शो मैनचेस्टर में था, आप देख सकते हैं कि कितने लोग आए हैं, इस प्रोजेक्ट में कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। पाकिस्तानी लोग पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें और जो ओवरसीज पाकिस्तानी स्पेशली यूके के लोग हैं वो इन्वेस्ट करें वहाँ पे, और वहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटी है। The reason why we need to invest in Pakistan is because this is where our motherland is. बेशक हालात अच्छे नहीं हैं, बुरे हैं, लेकिन हमें पाकिस्तान का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और हमें अल्हम्दुलिल्लाह मैनचेस्टर की
जो सर आप क्राउड देख रहे हैं, बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला है। अभी देखें मैनचेस्टर के एक और आपके लोकल हीरो वसीम अकरम साहब, वो भी यहाँ तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने बड़े अच्छे अल्फाज का इज़हार किया है। जिन लोगों ने ऑलरेडी पार्क सिटी में इन्वेस्ट किया, जो करना चाहते हैं, तो सीनियर मैनेजमेंट यहाँ पे मौजूद है। इफ़ दे हैव एनी क्वेश्चन दे कैन आस्क देम। और जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए ये प्रोग्राम उनके लिए इन्फॉर्मेशन है कि वो दे कैन गो एंड सी द प्रोजेक्ट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो है पाकिस्तान में, अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी तो पाकिस्तान की ट्रेड प्रमोशन के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। तकरीब में मैनचेस्टर से मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन हज़रात ने बड़ी तादाद में शिरकत की और अपने फेवरेट हीरोज़ के साथ तस्वीर भी बनवाई। इस मौके पर शुरका ने पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार भी किया। साबिक चेयरमैन OPF बैरिस्टर अमजद मलिक ने तकरीब में फैमिली की हमरा शिरकत की। कैमरा टीम के साथ राजा वाजिद, 92 न्यूज़, मैनचेस्टर। बरतानवी होम ऑफिस ने एशियाई ममालिक से काबिल तरीन अफराद के बरतानिया लाने के लिए नए वीज़ा कैटेगरीज मुतारिफ करवा दी हैं, जिनके मुताबिक 50 से ज़ायद ममालिक की यूनिवर्सिटी से डिग्री याफ्ता अफराद बरतानिया आसानी से आ सकेंगे। बरतानवी हुकूमत उन्हें हाथों हाथ लेगी। ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन आवान ने मारूफ इमिग्रेशन सोलिसिटर रिजवान सुलहरिया से इस हवाले से खुसूसी बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ लंदन में सोलिसिटर रिजवान सुलहरिया साहब मौजूद हैं, जो कि इमिग्रेशन के माहिर सोलिसिटर हैं। इनसे पूछते हैं कि बरतानिया के अंदर इस वक्त फिर जो है वो इमिग्रेशन कवानीन के अंदर तब्दीली आ रही है और स्पेशली जो तरक्की पजीर ममालिक से जो लोग यहाँ पर आना चाहते हैं उनके लिए कुछ काफ़ी सहूलतें, मैं कहूँगा वीज़ा में आसानियाँ पैदा हो रही है। इन्हीं से पूछते हैं कि इस वक्त किस कैटेगरी के अंदर जो है वो वीज़ा चेंज हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो 92 न्यूज़ का आप हमेशा पहले खबर देते हैं। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छी कुछ खुश आइंद बातें हैं इन द सेंस के कुछ ग्लोबल एक्सपेंशन वीज़ा की बात करें अगर हम, या जो ग्रेजुएट हैं पूरी दुनिया में जिन्होंने टॉप 50 यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, तो उनके लिए कुछ वीज़ाज आए हैं। सोल रिप्रेजेंटेटिव वीज़ा था बरतानिया का, उन्होंने बंद किया, लेकिन उसके अगेंस्ट उन्होंने ग्लोबल एक्सपेंशन वीज़ा दिया है। ग्लोबल एक्सपेंशन वीज़ा वो है जिसमें आप आ सकते हैं, 1 साल के लिए काम कर सकते हैं किसी नई कंपनी के लिए, और अगर ऑलरेडी वो कंपनी ट्रेड कर रही है तो फिर आप सीनियर वर्कर या स्पेशलिस्ट वर्कर के तौर पे यहाँ पे आ सकते हैं। तो ये नई चेंजेस आई हैं। और ग्लोबल एक्सपेंशन वीज़ा में आपके जो कंपनी के मालिक हैं उनको अपनी कंपनी की ब्रांच खोलने के लिए नई कंपनी बनाने की इजाज़त होगी और आप एज ए एक्सपेंशन वर्कर यहाँ पे आएंगे। 12 महीने के लिए आपके पास टाइम होगा, आप उसके ऊपर कंपनी के ऊपर काम करेंगे, उसकी ब्रांच बनाएंगे और उसके बाद फिर यह है कि आप Tier 2 लाइसेंस पे स्विच होकर उसी कंपनी में फर्दर काम कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। और उसके साथ साथ स्टूडेंट्स के लिए ऑब्वियसली PSW पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा जो है, जिन स्टूडेंट्स ने उस पर काम कर लिया है वो कर सकते हैं। उसके बाद अगर वो अवॉर्डिंग बॉडीज हैं मुख्तलिफ, उनके साथ अगर जाएं और वो उसको अपने वीज़े पे वर्क वीज़ा में स्विच कर सकते हैं, वो भी एक फैसिलिटी अवेलेबल है। उसके अलावा 2 साल के लिए वर्क भी कर सकते हैं डिग्री कंप्लीट होने के। तो साहब पहले ये एक एंटरप्रेन्योर वीज़ा था, फिर एक वीज़ा था जिसके अंदर आप अगर आपके पास कोई ऐसी एक्सपर्टीज है, कोई आपके पास ऐसी स्किल है तो आप यहाँ पर वीज़ा ले सकते हैं। क्या वो वीज़े खत्म हो गए हैं? इनोवेटर का वीज़ा अभी स्टिल मौजूद है। इनोवेटर वीज़ा की बात कर रहे हैं आप, स्टिल मौजूद है अगर आपके पास कोई ऐसी स्किल है। और अभी मजेदारी की बात है कि आप अपना प्लान जो है डिस्कस करें अवॉर्डिंग बॉडीज के साथ। बहुत सारी अवॉर्डिंग बॉडीज हैं जो आप, ये जो अवॉर्डिंग बॉडीज है ये होम ऑफिस की अवॉर्डिंग बॉडीज हैं, इंडिपेंडेंट काम करती है? इंडिपेंडेंट अवॉर्डिंग बॉडीज हैं जो एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम करती हैं। वो आपको खुद गाइड करती हैं और आपका जो बिजनेस है उसको समझती हैं और आपको एक प्लान बना कर देती हैं और उसके मुताबिक फिर जो है वो आप स्टार्टअप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं उसमें, या ऑलरेडी जो बिजनेस कर रहे हैं उसी की इन्वेस्टमेंट लेके आ सकते हैं, तो वो भी आप काम कर सकते हैं। अच्छा, आपने देखा कि साउथ एशिया से इस वक्त एक तो बड़ी तादाद के स्टूडेंट आ रहे हैं यहाँ बरतानिया के अंदर, तो सब देख रहे हैं कि जो दूसरे वीजे हैं जो अभी भी आपने बताया कि नए जो वीजा कैटेगरी, उसके अंदर बहुत लोग यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, उसकी क्या वजह? देखिए ऑब्वियसली बरतानिया में कौन नहीं रहना चाहता, और स्पेशली जो लेबर मार्केट है उसका बहुत ज्यादा यहाँ पे हाथ है। हर वक्त यहाँ पे जरूरत है स्किल्ड वर्कर्स की, तो ये स्किल्ड वर्कर्स की कैटेगरीज को इम्प्रूव करने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए होम ऑफिस ने नई कैटेगरीज जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई है। स्पेशली आप देखें कि जो टॉप 50 यूनिवर्सिटीज के ग्रेजुएट होंगे लास्ट 5 ईयर्स में पढ़े होंगे वहाँ पे, उनके लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बेशक इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश की कोई यूनिवर्सिटीज में शामिल नहीं है, लेकिन वहाँ पे हमारे बहुत सारे लोगों ने ग्रेजुएशन किया होगा, बहुत सारे लोग पढ़े। पाकिस्तानियों के लिए बताएं या इंडियंस के लिए जो साउथ एशियन के कौन सी जो वीजा कैटेगरी है वो उनके लिए बेहतर है, इसमें आ सकता है?
देखिए डिपेंड करता है उनकी स्केल के ऊपर, जैसे वो ग्लोबल एक्सपेंशन मैंने आगे बात की, किसी कंपनी में थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे ये क्या वीजा कौन सा है? ये 12 महीने के लिए आप काम कर सकते हैं। कोई यहाँ पे कंपनी जो है आपकी पुरानी वीजा 12 महीने के लिए इशू होगा, ये 12 महीने के लिए इशू होगा। उसके बाद आप उसको फर्दर जो है ना टियर 2 के ऊपर स्विच कर सकेंगे लाइसेंस लेके। तो ये बड़ा अच्छी मैं समझता हूँ कि अपॉर्चुनिटी आई है, नई अब चीजें आई हैं। ऑब्वियसली विद द पैसेज टाइम इसके रूल भी चेंज हो गए, चीजें भी चेंज हो गई, लेकिन फिलहाल ये बहुत अच्छा वीजा है। और अगर जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं बरतानिया, उनको आना चाहिए, आ जाए, मोस्ट वेलकम। इनोवेटर पे भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा वीजा है एज लॉन्ग एज के आपके पास स्किल है। उसके अलावा जो दूसरा स्किल्ड वर्कर का वीजा था जिसको टियर 2 वीजा कहा जाता है, वो स्टिल मौजूद है। वो ये वो एक सवाल है जो हम आपसे हमेशा ही पूछते हैं, वो है कि जो अनडॉक्यूमेंटेड यहाँ पर हमारे लोग हैं, तो उनके लिए कुछ बताएंगे, वो खबर आ रही है? देखिए ऑब्वियसली इस पे बैक एंड पे काम तो हो रहा है, लेकिन अभी तक जो है ना इस पे कुछ हो नहीं सका ऑनेस्टली स्पीकिंग। लेकिन होपफुली मतलब डेफिनेटली मोर देन 1 मिलियन लोग हैं, उनके लिए होम ऑफिस जो है वो डेफिनेटली इस पे काम तो कर रहे हैं। और स्पेशली अभी जो बैकलॉग है ऐसे लोगों के लिए कुछ सजेशन देना चाहेंगे? देखिए वो जिधर भी है वेट करें, और अगर उनके पास कोई ऐसे अनडॉक्यूमेंट बेशक है, लेकिन कुछ कोशिश करेंगे अगर वो किसी ना किसी तरीके से वो अपना कुछ ना कुछ अप्लाई करें, ताकि होम ऑफिस के रिकॉर्ड में रहे, उनको पता हो कि लोग यहाँ पे मौजूद है, तो उनके लिए उनको कुछ करना है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। गद्दी नशीन दरबार आलिया अजमेर शरीफ पीर सैयद बिलाल हुसैन चिश्ती की मैनचेस्टर में 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं भारत में किसी को हक नहीं कि वो दूसरे मजहब की मुक़द्दस शख्सियात की शान में गुस्ताखी करे। वो भारत में होने वाली हालिया गुस्ताखी की पुरजोर मजम्मत करते हैं। मोदी सरकार से दरख्वास्त है कि वो इस पर सख्त एक्शन ले। दोनों ममालिक के मशाइख अज़ाइम गद्दी नशीनों के वफूद का तबादला होना चाहिए। नुमाइंदा 92 न्यूज़ राजा वाजिद से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं। जी हाँ बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजदिल में, जहाँ पर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पीर सैयद बिलाल हुसैन चिश्ती गद्दी नशी दरगाह अजमेर शरीफ इंडिया, जो कि आजकल बरतानिया के दौरे पर हैं। और आज इनसे पूछते हैं कि इनके बरतानिया के दौरे के क्या मकासद हैं, और इनसे कोई चंद एक और सवाल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ताल्लुक़ बारगाह गरीम नवाज हिंदल वली अताए रसूल, जो किसी शख्सियत या तारुफ की मोहताज नहीं है, उस आस्ताने से हम वाबस्ता हैं जहाँ पर हिंदुस्तान के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने अताए रसूल की बारगाह में हाज़िरी दी और बेसाख्ता ये जुमला कहा, और हमारी VIP बुक में लिखा है कि हिंदुस्तान में हम राज नहीं करते हैं, एक कब्र राज करती है। अच्छा सरकार, अभी हाल ही में हिंदुस्तान की एक सियासी जमात की खातून ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखाना जुमले कहे, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? और ख़ास तौर पर जो हिंदुस्तान की हुकूमत है उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हिंदुस्तान की तहजीब जो है ना जी, बर सग़ीर में और बहुत ऊंचे पैमाने पर ये किसी को राइट नहीं दिया गया है कि किसी के मज़हब के रहनुमा, लीडर या उसके पैगंबर या उसके महापुरुष या उसके देवता को किसी दूसरे आदमी का कीचड़ उछालने का मेरे मुल्क, मेरी गवर्नमेंट, मेरे लोगों ने राइट नहीं दिया। मैं अपनी गवर्नमेंट से, मेरे वज़ीर आज़म से इस बात पर एहतजाज करता हूँ आस्ताना आलिया अजमेर शरीफ की खानका की जानिब से कि इस तरह से इस पुरसुकून मज़हब में, जहाँ कहते हैं मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं, हम वतन हैं, हिंदुस्तान हमारा, ये वो हिंदुस्तान है जहाँ पर किसी मज़हब पे कीचड़ नहीं उछाला जाता था। मैं बड़े दुख के साथ इसकी मजम्मत करता हूँ, बल्कि सारे आलम इस्लाम की जानिब से और दुनिया के सूफियों की जानिब से उस आस्ताने की निस्बत से मैं बड़ी ज़ोर से मजम्मत करता हूँ। इस मुल्क में सुकून को गहवारा रहने दें, लोगों के कहने में, करने में इसको खाना बदोशी की तरफ ना बढ़ें। मैं अपने वज़ीर आज़म से दरख्वास्त करता हूँ इस पे कड़ा से कड़ा एक्शन लें, वरना दुनिया भर में हमारे मुल्क की जो डेमोक्रेसी के नाम से तो जाना जाता है, उस पर बहुत बड़ा धब्बा लगेगा। अच्छा सरकार, यासीन मलिक की जो सज़ा हुई सुनाई गई है, उसको जो कैद सुनाई गई है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, यासीन मलिक जो है वो एक सियासी हल्का आ जाता है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर करने का एक ही तरीका है, दोनों मुल्कों की तहजीब तमीज़ है, ज़बान एक है, तो अवामुन्नास के लिए खुदा रहा मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट से भी, इंडिया गवर्नमेंट से भी इल्तिजा करते हूँ कि हालात में 70 साल में हमने बहुत कुछ खोया है, उसके नताइज कुछ नहीं निकले। अवामुन्नास
महंगाई से मारी जा रही है, गुर्बत से मारी जा रही है। खुदा रा दोनों मिलकर बैठें और इस मसले को हल करें। और दुनिया के ऐसी कौन सी खूबी नहीं है बल्कि मशाइखों के डेलीगेशन इस मसले को हल कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। पीर सैयद बिलाल हुसैन चिश्ती साहब का कहना है कि तमाम उम्मत मुसलमा के तमाम ममालिक को आपस के तफरकात और आपस के जो उनके इख्तलाफात हैं उनको और फ़िरक़ों को बालाए ताक रख कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की खुशनुदी के लिए काम करना चाहिए। जी। और साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए खिदमात पर दीगर तंजीमें भी मोतरफ़। पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्यूनिटी ग्लोबल के अमारात में आला ओहदेदारान राना शहजादा, अनीस अहमद और ज़हीर अहमद ने ग्रैंड ओवरसीज़ क्लब के क़याम को खुशाइंद कहा और साबिक गवर्नर के ओवरसीज़ के लिए जज्बात को खूब सराहा। मज़ीद तफसीलात सैयद मुदस्सिर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की क़यादत में ग्रैंड ओवरसीज क्लब पर ओवरसीज पाकिस्तानियों और तंजीमों का एतमाद बढ़ने लगा। दुबई में ग्रैंड ओवरसीज क्लब के ज़ेरे एहतमाम तकरीब और क़याम के बाद पाकिस्तान ओवरसीज कम्युनिटी ग्लोबल गोल्फ के सदर ज़हीर अहमद, जनरल सेक्रेटरी गोल्फ राना शहजाद अनीस और नवीद अहमद की क़यादत में वफद साबिक गवर्नर पंजाब और उनकी नौ मुंतखब टीम को मुबारकबाद पेश की और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पाकिस्तान ओवरसीज कम्युनिटी ग्लोबल के आला ओहदेदारान ने चौधरी सरवर की क़यादत में ग्रैंड ओवरसीज क्लब के इक़दामात को जबरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। उनका कहना था कि उन्हें बहुत खुशी है कि साबिक गवर्नर ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल को हल करने के लिए मैदान में आए हैं, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी जो 30 अरब डॉलर का कीमती ज़र मुबादला हर माह वतन अजीज भेजते हैं, उनको कभी वो हैसियत नहीं दी गई जिसके वो हकदार हैं। पाकिस्तान ओवरसीज कम्युनिटी ग्लोबल गोल्फ के सदर ज़हीर अहमद, जनरल सेक्रेटरी गोल्फ राना शहजाद अनीस और नवीद अहमद का 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि ग्रैंड ओवरसीज क्लब के क़याम से एक उम्मीद पैदा हुई है कि दियारे गैर में बसने वाले पाकिस्तानियों की मुश्किलात का अज़ाला मुमकिन हो सकेगा। पीओसी ग्लोबल ग्रैंड ओवरसीज क्लब के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। ओवरसीज पाकिस्तानियों का मसला हो, मिसाल के तौर पर किसी पे झूठी FIR हो जाती है, किसी के साथ वहाँ पर डाका उनके पड़ जाता है, किसी की चोरी हो जाती है, कोई मर्डर हो जाता है, तो उन तमाम केसेस जो हैं ओवर पाकिस्तान रिलेटेड इंशाल्लाह उनको हम पूरी कुव्वत के साथ इंशाल्लाह अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाइयों की मदद करें। गैदरिंग हुई है ये ग्रैंड ओवरसीज़ क्लब के जो चेयरमैन हैं, जो CEO हैं सरवर साहब, चौधरी सरवर साहब, उन्होंने इस तंजीम की बुनियाद रखी है, इस प्लेटफार्म की बुनियाद रखी है और ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और इसका मकसद है ओवरसीज़ को हकूक़ दिलाना। उन्होंने अमली तौर पे इस चीज़ का सबूत दिया। पाकिस्तान पंजाब ओवरसीज़ कमीशन उन्होंने पहले जो है उसकी इब्तिदा की और वहाँ पे बहुत से ओवरसीज़ पाकिस्तान के मसले हल हुए। अब भी मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से जिस अज़म के साथ यहाँ पे मतलब मीर साहब को उन्होंने सदर सेलेक्ट किया है, जिस अज़म के साथ वो भरपूर तरीके से ओवरसीज़ पाकिस्तान को इस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर रहे हैं, तो हमें बड़ी उम्मीद है कि हम बड़े अच्छे तरीके से मिसाइल को ना सिर्फ उजागर करेंगे बल्कि इनको हल भी करवाएंगे। जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसके लिए मैं जो है ना वो गुजारिश करूँगा, उनको इल्तिजा करूँगा कि इसको सपोर्ट भी कीजिए और ये हमारे जो CEO है इनकी जो मेहनत है और इसका जो बैकग्राउंड है देखते हुए इनको सपोर्ट का जो है ना वो ज़रूर हमारा हक बनता है कि उन्होंने जिस मेहनत से और जिस ईमानदारी से वो हुकूमत में भी रहे, गवर्नर भी रहे, उसके बाद भी काम करते रहे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा प्लेटफार्म होगा जहाँ पे हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हकूक़ की जो है ना वो बात की जाएगी। उनका मजीद कहना था कि ग्रैंड ओवरसीज़ क्लब का अपनी मरकजी क़यादत से मुशावरत पर मुकम्मल साथ देंगे। POC ग्लोबल का ग्रैंड ओवरसीज़ क्लब का आपसी ज्वाइंट वेंचर हमारे चेयरमैन मियां तारिक जावेद और दीगर सीनियर क़यादत करेगी। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सिर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। तबलीग कुरान और सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक दावत इस्लामी फ्रांस की जानिब से सुन्नतों भरे इज्तिमा का एहतमाम किया गया, जिसमें मरकज़ी मजलिस शूरा के निगरान मौलाना हाजी इमरान अतारी ने जैसा करोगे वैसा भरो के उन्वान पर सैर हासिल बयान दिया। इज्तिमा में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भरपूर शिरकत की। तफसीलात के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। पेरिस में होने वाले इज्तिमा में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसीर तादाद में शिरकत की। सुन्नतों भरे इज्तिमा का आगाज तिलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हुआ।
दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शुरा के निगरान हाजी मौलाना इमरान अतारी ने माशरती मामलात के हवाले से अपने खिताब में कहा कि हमें एक ऐसा माशरा तरतीब देना होगा जिससे हमारे दीनी और दुनियावी मामलात में बेहतरी आए। उन्होंने कहा कि दुनिया में जैसी करनी और वैसी भरनी एक ऐसी हकीकत है जो कि जगह जगह हमें अपना सबूत फराहम करती है। जैसा करोगे वैसा करोगे। जिन्होंने शराबे पिला पिलाकर हमारे नौजवानों की जिंदगियां बर्बाद कर दी है, जुआ खेला खिला कर जुए का आदि बना बनाकर हमारे नौजवान हमारे लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी है। जैसा करोगे वैसा करो। ये ना समझो कि तुम बुरा करोगे तुम्हारे साथ भला होगा। बेवकूफ हो, बेवकूफ। सेंसलेस डिस्कशन है ये कि मैं बुरा करूंगा मेरे साथ भला होगा। अरे दीवार पे काला रंग करोगे क्या सफेद नजर आएगा? काला रंग करोगे तो काला ही नजर आएगा। बचपन से सुन रहे हैं, स्कूल के जमाने से सुन रहे हैं, जो किसी के लिए खड़ा खुद तक खुद ही गिर जाता है। अपने खिताब में निगरान शुरा का कहना था कि आप जो कुछ भी किसी के साथ करेंगे वो अच्छा हो या बुरा वो पलट कर वापस आएगा। अच्छाई का बदला अच्छाई और बुराई का बदला बुराई ही होता है। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। मौलाना हाजी इमरान अतारी का मजीद कहना था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। उन्होंने कहा कि हमें खुद को ऐसा बनाना चाहिए कि जो कोई हमें देखे तो कहे ये है इस्लाम। मौलाना हाजी इमरान अतारी ने शुरका को तरगीब दिलाई कि आए आज हम अहद करें कि अपनी जिंदगियों को इस्लाम के मुताबिक ढाल लेंगे और अपने बच्चों को भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ताबे कर लेंगे। रूह परवर इज्तिमा के इख्तिताम पर मौलाना हाजी इमरान अतारी ने उम्मत मुस्लिमा की खुशहाली और पाकिस्तान की तरक्की के लिए खुसूसी दुआ करवाई। दुनिया में कोई गुनाह कबूल करता है तो सजा मिलती है, तेरी बारगाह में कोई गुनाह कबूल करता है तो माफी मिल जाती है। ए मौला हम हाजिर हैं, हम अपने सारे गुनाह कबूल करते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने सुन्नतों भरे इज्तिमा में भरपूर शिरकत की और निगरान शुरा की नेकी की दावत को बेहद सराहा।